Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. As you are already aware that we have completed poem Try Again by Eliza Cook from our new English NCERT book Purvi of class 7th. Today we are going to start with its question answers. In the poem we have read about King Bruce of Scotland, who was hopeless in the starting or beginning of the poem, as he was not able to do something good for his people. But when he saw a spider who was clinking from the ceiling through a silky glue, was trying to achieve his goal as he was trying to move towards its cobweb, and after making 9 attempts he achieved his goal by trying and trying again. King Bruce was motivated. So this poem tells us that every one of us should try and try again, even if there are failures, difficulties. We will succeed only if we will try and try again. So let's start with its question answer today. Let us discuss. Complete the summary of the poem by filling in the blanks with the suitable words for the text given in the box below. Share your answers with the teacher. An example has been given. Now in this there are some words which are given in the box. Let us read out the words first. Tried, mounted, despair, attempts, great, conquered, low, strive. Now in this box there are some words which are given and we have to fill in the correct word in the summary which is given over here. The poem, written in a narrative style, tells the story of King Bruce of Scotland, who was feeling low after failing multiple times to achieve something great for his people. In a moment of despair, he observed a spider trying to reach its web high above. The spider mounted every time it fell after getting close to its goal. It made 9 attempts and finally succeeded. The king said that the spider had conquered, and so would he. Inspired by the spider's determination, King Bruce decided to strive. When he tried this time, he ultimately succeeded. So we have to complete this summary using the words which are given in the box. Let's come to the next question. Complete the following sentences suitably. We can say that the poet uses the narrative style because the poem is in form of a story. Because नरेशन ये जो पोएट है उसने नरेशन स्टाइल में क्यों बोला है इसको, इस पोम को, बिकॉज ये पोम जो है ना ये एक स्टोरी की फॉर्म में है. इसलिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोम इज to never give up and try again and again, because when we try we will succeed even if there are failures. When we try again and again we definitely get success. Pick 3 examples from the poem for each of the following lines that describe the spider's effort. Now here I have taken out few lines. Up it ran, not a single to stay. Its head grew steady, again it went, but up the insect went once more. So these are few lines which tells us about the spider's effort. Alliteration. What is alliteration? The repetition of same consonants at the beginning of
closely connected words. So there are some words which are given with same consonant sound. There is repetition of those words, which is called alliteration. So which are those words? Tried and tried, steadily steadily, up, inch by inch. Okay, they are starting with the same consonant. They put T for tried here, T, tried. Steadily steadily, SS. Up, U, I, inch by inch. Now why does the poet repeat the following words or phrases in the poem? Tried and tried, steadily steadily, up. Why do you think that the poet is repeating these words again and again? To put the stress on that how the spider has got the success. Okay, so the poet repeats these words to show the hard work and struggle of the spider, that how he has shown hard work and the struggle of spider to reach his cobweb. Fill in the blanks by choosing the correct answer from within the bracket. The rhyme scheme of poem is A B B, A B B A, A B A B. So the correct answer is A B A B. Now how come? कैसे? See, यहाँ पे मैंने कुछ lines डाली हैं. One para I have taken from the one stanza I have taken from the poem and I have put it over here for you to explain. King Bruce of Scotland flung himself in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sing. देखो फर्स्ट लाइन में लास्ट में हमें दिया है डाउन और थर्ड लाइन में दिया है क्राउन. तो डाउन और क्राउन एक जैसे हैं, तो हम डाउन को ए मान लेते हैं. अगर ठीक है, अगर हम डाउन को यहाँ पर ए मान लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे इसको ए मान लिया और क्राउन भी जो है वो ए हो जाए. ठीक है, सेकेंड लाइन में इन अ लोनली मूड टू थिंक, थिंक जो है वो हमारा हो गया यहाँ पर बी एंड हिज बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, ये हो गया बी, क्योंकि थिंक और सिंक राइम कर रहे हैं, डाउन एंड क्राउन जो है वो राइम कर रहे हैं. तो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी. I hope you have understood this. Bravo is an example of conjunction, interjection or adjective. This is the example of interjection. Example of interjection. Interjection कब होता है? जब हम कोई feelings बताते हैं उसको हम बोलते हैं interjection. The poet uses toas and tis for the sake of rhythm, rhyme or contraction. Toas means टोअस का जो टोअस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? इट वॉज का. इट वॉज. ठीक है, इट वॉज. और टिस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? इट इज. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट फॉर्म, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन. ओके, so this way you will complete this page. The spider's climbing is compared to King Bruce's own struggle. Just as the spider repeatedly attempts to reach its web, Bruce is trying to achieve a great deed for his people. The poetic device is called metaphor. It strengthens the poem's message about perseverance. Keep trying till we succeed. So the spider is trying to climb and it is compared to King Bruce struggle. स्पाइडर जैसे क्लाइम कर रहा था उसको कंपेयर किया गया है किंग ब्रूस के अपने स्ट्रगल्स के साथ. तो जिस तरीके से स्पाइडर टोटली बार अटेम्प्ट्स कर रहा था अपने कॉबवेब तक रीच करने के लिए, ब्रूस भी जो है वो अपने पीपल के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था. ठीक है, so this is the poetic device which is used in metaphor. It is called metaphor. It strengthens the poem's message about perseverance. That ये क्या बताता है हमें कि इसमें एक poetic device यूज किया है metaphor. Metaphor क्या है? It is a figure of speech that involves an implied comparison between two unlike things. दो चीज़ें जो एक जैसी नहीं है, जब उनके अंदर कंपैरिजन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटाफर. बट इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है? विदाउट यूजिंग लाइक, एज और एज. इसमें
लाइक एज और एज यूज नहीं करा जाता। अगर हम लाइक एज और एस यूज करेंगे तो वो सिमिली बन जाएगा। इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर, हाईलाइटिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन देम टू एड डीपर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो मेटाफर जो है वो एक जो है क्या सजेस्ट करता है कि वन थिंग इज अनदर, तब जैसा स्पाइडर जो है स्पाइडर का जो स्ट्रगल था सेम ही किंग ब्रूस का भी स्ट्रगल था। ठीक है, और ये क्या हाईलाइट करता है, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलर क्या है, एक जैसा क्या है, और एक डीपर मीनिंग देता है और अंडरस्टैंडिंग देता है पोम के। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई मेटाफर एंड सिमिली। अब यहाँ पर मेटाफर एंड सिमिली हमें आइडेंटिफाई करने हैं। आपको बताया मैंने मेटाफर में हम लाइक एज और कभी यूज नहीं करते और सिमिली में हम यूज करते हैं। तो वेर एवर वी फाइंड कि जहाँ लाइक दिया है, एस दिया है, तो वहाँ और दिया हुआ है तो हम क्या उसको बताएंगे, वो सिमिली है, और जहाँ नहीं दिया इट इज मेटाफर। ही रैन एज फास्ट एज चीता। अब यहाँ पर हमें एज दिया हुआ है तो इट मीन्स दिस इज अ सिमिली। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहाँ पे एज नहीं दिया, लाइक नहीं दिया, और नहीं दिया, तो दिस मीन्स दिस इज अ मेटाफर। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल। नाइट को कंपेयर किया है किससे, नाइट कितनी डार्क है, कोल जैसी डार्क है, तो ये क्या है, एज दिया हुआ है तो सिमिली। ही सैंग लाइक एन एंजल। यहाँ पे फिर लाइक डला हुआ है कि उसने कैसे गाया, एंजल की तरह। ठीक है, कंपेयर किया गया है किससे, एंजल से, इट इज अ सिमिली। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे वो, यहाँ पे लाइक नहीं दिया, एज नहीं दिया, और नहीं दिया, तो दिस इज अ मेटाफर। द क्लासरूम वॉज अ जू। ये भी सिंपल है, इसमें कोई हमें लाइक नहीं दिया, एज नहीं दिया, और नहीं दिया, तो दिस इज अ मेटाफर। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग। लाइक यहाँ डाला हुआ है तो दिस इज अ सिमिली। हर स्माइल वॉज ब्राइट एज सन। एज डाला हुआ है यहाँ पर, उसकी स्माइल क्या कैसी थी, जैसे इतनी ब्राइट थी जैसे कि सन की लाइट होती है, सन जैसी, सिमिली। द लेक वॉज द मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई। यहाँ पे कुछ नहीं डाला हुआ तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मेटाफर। So this way you have to complete, you have to write S for metaphor and S for simile and M for metaphor. Read the following sentences and transform the similes to metaphor and metaphor to simile. Two examples have been given. अब यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, टू सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अगर वो सिमिली है तो मेटाफर में, और अगर वो मेटाफर है तो उसको हमें सिमिली में ट्रांसफर करना है, राइट। So how we will do that? Let us read out the sentences which are given as examples. Knowledge spreads like branches of a mighty tree. ठीक है, अब लाइक दिया है, नॉलेज कैसे स्प्रेड होती है, मतलब नॉलेज मतलब हमारी जो हमें जो नॉलेज है वो कैसे स्प्रेड होती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्रांचेज ऑफ अ माइटी ट्री की ब्रांचेस की तरह नॉलेज जो है वो स्प्रेड होती है। जब लाइक लगा है तो ये सिमिली है, और अगर हमें उसे मेटाफर में चेंज करना है, नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ माइटी ट्री। अब यहाँ पे कोई लाइक नहीं लगा तो हमने सिमिली को मेटाफर में चेंज कर दिया। हिज करेज वॉज अ बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर हमें मेटाफर दिया है। हिज करेज वॉज अ बेकन, उसकी जो करेज है, जो उसके अंदर हिम्मत है, वो वॉज अ बेकन। बेकन क्या होता है, एक आपने देखा होगा लाइट होती है किसी भी हिल पे या टावर पे, किसी कोस्टल एरिया के पास, जहाँ पर जो हमें सिग्नल देती रहती है, लाइट देती रहती है। ठीक है, तो उसकी जो करेज थी वो एक बेकन की तरह थी जो हमें स्टॉर्म में गाइड करती रही। ठीक है, तो हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो एज लगा दिया यहाँ पे हमने कि उसकी करेज इतनी ब्राइट थी, कैसी, बेकन जैसी, और पूरे स्टॉर्म में हमें गाइड करती रही, तो दिस इज अ सिमिली। हिज करेज वॉज लाइक अ बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो उसकी जो करेज है वो लाइक लगा दिया, कैसी थी, बेकन के जैसी, जिसने हमें स्टॉर्म में गाइड किया। Let's come to the next sentence. The book was a treasure chest filled with endless adventures. अब यहाँ पर हमें
क्या दिया हुआ है कि बुक जो है वो एक ट्रेजर चेस्ट की तरह है। ट्रेजर चेस्ट क्या होता है? ट्रेजर जिसमें खजाना रखते हैं। फिल्ड विद एंडलेस, एक जो बुक होती है वो ट्रेजर चेस्ट के खजाने की तरह होती है हमारे लिए, जिसमें एंडलेस एडवेंचर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है। दिस इज अ मेटाफर, वी हैव टू चेंज इन सिमिली। कैसे करेंगे? द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। ठीक है, लाइक लगा दिया यहाँ पे हमने। हर लाफ्टर वॉज अ मेलेडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट, उसका जो लाफ्टर था वो ऐसी मेलेडी, उसकी हंसी जो थी वो ऐसी हमारे लिए मेलेडी थी, ऐसी आवाज़ उसकी इतनी मीठी थी जो हमारे डार्केस्ट डे को भी, मतलब जो हमारे सैडेस्ट डे हैं, सैड डे होते हैं जो, जिसमें हम दुख में भरे होते हैं, उसकी हंसी ऐसी मेलेडी थी कि वो हमारे लिए, उसको भी, डार्केस्ट डे को भी उसने ब्राइट कर दिया। अब अगेन वी हैव टू चेंज इन सिमिली। Her laughter was like a melody that brightened the darkest day. So like this we have to change. The mountain stood as a guard watching over the valley below. Mountain stood as a guard watching over the valley below. तो माउंटेन जो है वो कैसे खड़ा हो गया? गार्ड की तरह खड़ा हो गया, जैसे कि नीचे की तरफ वो वैली को देख रहा हो। एज लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सिमिली है। अब हम इसे मेटाफर में चेंज करेंगे। द माउंटेन वॉज द गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। Now we have not added anything over here to change it into a metaphor. The night was like a velvet cloak. Night कैसी थी? velvet cloak की तरह। cloak क्या होता है? एक तरह का कपड़ा, कोट। wrapping the world in mystery, लग रहा था ये रात जो ऐसी है कि जिसने ऐसा velvet cloak पहना हुआ है जो पूरे वर्ल्ड को मिस्ट्री में रैप कर लेगी अपने साथ। इसको like दिया हुआ है, it means this is a simile and we have to change into metaphor. The night was a velvet cloak wrapping the world in mystery. Next, her thoughts were like butterfly in summer meadow. उसकी जो thoughts हैं वो कैसी हैं? बटरफ्लाई के जैसी। जैसे एक समर मेडो में, ग्रासेस में जो है बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई इधर से उधर भागती रहती है, तो उसकी थॉट्स भी ऐसी हैं। जो बटरफ्लाई जैसे इधर से उधर भागती है, उसकी थॉट्स भी जो है वो इधर से उधर होती रहती है। Her thoughts were butterflies in a summer meadow. Now let us think and reflect. Read the extracts given below and answer the questions that follow. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered, "There, I'll give it all up," said he. Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue. Select the phrase which shows physical expression of King's emotional state. Now King जो था वो इस पोम में, he was very upset, very hopeless in the beginning of the poem. ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन इसमें से चूज करनी है जिससे हमें किंग का इमोशनल स्टेटस या इमोशनल स्टेट पता लगे कि वो कैसा। He flung himself down in low despair. फर्स्ट लाइन ही है जो वो बता रही है कि उसने अपने आप को नीचे गिरा दिया, वो बैठ गया नीचे। लो डिस्पेयर में मतलब वो बिल्कुल ही अपने आप, इतना ज़्यादा अपसेट था वो, अपने आप से इतना ज़्यादा अपसेट था, होपलेस था कि उसने अपने आप को गिरा दिया नीचे की तरफ, वो नीचे बैठ गया। वाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर? डिस्पेयर से पहले लो वर्ड का यूज क्यों किया? The poet uses the word low before despair to show King's hopelessness. कि किंग जो है वो बहुत ज़्यादा होपलेस था, इसलिए लो वर्ड का यूज़ किया गया। Choose the correct option to complete the sentence. In the line, and after a while he pondered there, the word pondered means, pondered का meaning क्या होता है? इस लाइन में दिया and after a while he pondered there. Pondered मतलब क्या होता है? Thought. So correct answer is thought. ऑप्शन ए है paused, बी है thought, सी noticed, डी rested. So correct option is B, thought. Choose the correct option from the words given in the bracket. The phrase silken filmy clue creates the image of something that is, ये जो phrase दिया है यहाँ पे silken filmy clue, ये किस तरह की इमेज जो है वो बता रही है? लॉन्ग और लाइट, वेरी डेलिकेट और सॉफ्ट। वो जो स्पाइडर था वो नीचे की तरफ गिरा और वो किसके साथ अटैच था? एक जो है वो थ्रेड के साथ अटैच था। वो जो थ्रेड थी वो कैसी थी?
डेलिकेट थी या लॉन्ग थी या लाइट थी, क्या आएगा इसका आंसर? वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट. When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, but up the insect went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? Choose the correct option to complete the analogy. Toil hard. अब एनालॉजी क्या होती है? जो सेम बताते हैं वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. ठीक है. अब इसके साथ क्या मैच करेगा? रोल, टम्बल, टम्बल सर्कल, कंप्रेस, रोल, जंप, टम्बल. अब देखो टम्बल सर्कस, ये टम्बल और सर्कल, सर्कल जो है वो शेप हो गई, टम्बल उसके साथ मैच नहीं करेगा. कंप्रेस एंड रोल, कंप्रेस मतलब बिल्कुल दबा देना, रोल मतलब, तो दोनों का मीनिंग सेम नहीं है. जंप, टम्बल, अगेन मीनिंग सेम नहीं है. रोल एंड टम्बल आर सेम. सो वन word will be roll and the other will be tumble. So A1 is the correct option over here. So you will take A. List any two characteristic of spider highlighted in the line, but up the insect went once more. Now you have to tell any two features or characteristics which you feel is highlighted in this line ki but up the insect went once more. Hard working and perseverance. Okay. Choose the correct option to complete the sentence. The expression ah me in the extract indicates a sense of happiness. इस expression में क्या पता लगता है? Happiness, stress, relief, loneliness. So the correct answer is B, stress. Complete the sentence with an appropriate reason. Readers are able to relate to this extract because इस extract के साथ हम अपने आप को relate कैसे कर सकते हैं? Readers are able to relate to this extract because this poem encourages everyone to try and try again till they succeed. Even if there are failures, we will get or achieve success. So, we are able to relate to this extract because this poem encourages us, motivates us that we should try and try again till we get success. Answer the following questions. How does the first stanza help in setting mood of the poem? The first stanza helps in setting the mood of the poem by emphasizing on the importance of perseverance and refusing to give up even after failure. So the first stanza हमें क्या बताता है कि importance क्या है hard work की, and we should फर्स्ट स्टैंडा जो है वो हमें ये बताता है हार्ड वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए इवन इफ देयर आर फेलियर्स. Describe how King Bruce's attitude changes from the beginning towards the end of the poem. King Bruce का attitude जो है beginning से end तक कैसे change हुआ? Beginning में he was hopeless, sad because he was not able to do something good for his people, so he was sad. But at the end, when he saw the spider, he was motivated by the hard work. Okay, so how we will write the answer? In the beginning of the poem, King Bruce was hopeless and decided to give up on great deed he was doing for his people. So whatever good he was doing for his people, he decided to give up in the beginning of the poem, and he was very hopeless for that. But in the end of the poem, he was motivated by the hard work of spider and decided to try again. So in the end, when he saw the spider, he was motivated, encouraged by his hard work. So he decided to try again. Question number 3. The poet describes every action of the spider in great detail. What does this tell us about his attitude towards the spider? जो पोएट है उसने क्या डिस्क्राइब किया है, हर एक्शन बताया स्पाइडर का डिटेल में.
तो हमें ये क्या बताता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर. द पोम टेल्स दैट द पोएट इज एडमायर्ड बाय स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन एंड हार्ड. पोएट के बारे में हमें क्या पता लगता है कि पोएट ने क्यों ये हर एक्शन स्पाइडर का डिटेल में बताया, क्योंकि वो खुद एडमायर्ड है उसके डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्क से, इसलिए. Okay, so you will write the answer that the poem tells that the poet is admired by the spider's determination and the hard work. How does the spider inspire us to overcome despair and not give up? Spider हमें कैसे इंस्पायर करता है कि हम जो है वो डिस्पेयर को जो है छोड़ दें, हम कभी गिव अप ना करें. Spider inspires us to overcome the feeling of despair by not giving up and trying to achieve goal by making continuous efforts. Continuous efforts जब हम करते रहते हैं तो हमें हमारा जो गोल है वो मिल ही जाता है. ठीक है, जो हम अचीव करना चाहते हैं उसे हम अचीव इजीली कर लेते हैं अगर हम कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहें. बट अगर हम गिव अप कर देंगे तो हम जो है वो अपने गोल तक सक्सेस अचीव नहीं कर सकते. The poem teaches us that failures are stepping stones to success. Explain. पोम हमें क्या समझाती है कि फेलियर्स जो है वो हमारे आगे फ्यूचर सक्सेस से रिलेटेड है. अगर आज हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है, अगर हमें फेलियर मिलता है तो आगे जाकर हम जो है वो सक्सेस ज़रूर पाएंगे. वही फेलियर हमारे लिए आगे स्टेपिंग स्टोन का काम करते हैं सक्सेस के लिए. Explain. Failures are stepping stones to success because we learn valuable lessons even if we fail. जब हम फेल हो जाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ नहीं कर पाते, तब भी हम वैल्यूएबल लेसन्स जो है वो जो है लर्न करते हैं अपने फेलियर से. टुडेज फेलियर इज पार्ट ऑफ फ्यूचर सक्सेस. हमारी फ्यूचर सक्सेस जो है वो आज के फेलियर पे डिपेंड करती है. कई बार ऐसा होता है हम बहुत बार ट्राई करते हैं, नहीं अटेम्प्ट हो पाता, नहीं क्लियर होता, नहीं सक्सेस मिल पाता, बट धीरे धीरे हमें वो चीज़ जो है वो इतने अच्छे से आ जाती है कि वो फेलियर जो है ना हमें आगे फ्यूचर में सक्सेस दिलाता है. ओके. Question number 6. The spider's journey tells us that anyone can be a source of inspiration in our lives. Elaborate. स्पाइडर की जो जर्नी थी उससे हमें ये पता लगता है कि किसी की लाइफ में भी ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है. इसको इलेबोरेट करते हैं. This poem teaches that anyone can be source of inspiration. देखो चाहे कोई छोटी चीज़ हो, अगर आपने एंट देखी होगी, एंट कितनी छोटी है, कितनी टाइनी है, बट वो भी इतना हार्ड वर्क करती है, टीम वर्क है उनके अंदर, इतनी यूनिटी होती है ना. तो चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी किसी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है. ठीक है. इन द पोम्स फॉर स्पाइडर्स हार्ड वर्क इंस्पायर्ड किंग ब्रूस. तो किंग ब्रूस को स्पाइडर का जो हार्ड वर्क था, इतना छोटा था स्पाइडर, बट उसका जो हार्ड वर्क था, अगेन एंड अगेन ट्राई करना, ठीक है, और अपने जो गोल है उसको अचीव करना, वो किंग ब्रूस को इंस्पायर कर गया. एंड ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन द गुड डीड ही वॉज डूइंग फॉर हिज पीपल. और उसने फिर कोशिश करी क्या करने की, अपने लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करी. ठीक है. स्टार्टिंग में आपने देखा था वो बिल्कुल होपलेस था, सैड था, और जब उसने स्पाइडर को देखा वो उसके हार्ड वर्क से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने भी सोचा कि अगर ये इतनी कोशिश कर सकता है, कोशिश कर करके 9 अटेम्प्ट्स करने के बाद कॉब वेब में पहुंच गया, अपना गोल अचीव कर लिया, तो मैं क्यों नहीं, मैं अपने लोगों के लिए गुड डीड क्यों नहीं कर सकता. तो मैं भी जो है वो अपने लोगों के लिए उनसे कोशिश करी और आगे जाके सक्सेस मिली. Let us learn write the opposite of the following words taken from the poem. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके ऑपोजिट लिखने हैं. अप, डाउन, फास्ट, स्लो, ग्लैड. ग्लैड का मतलब क्या होता है, हैप्पी. तो हैप्पी का ऑपोजिट सैड. विन, लूज, सक्सीड, फेल. और इवन यू कैन राइट फेलियर. Success, failure, succeed, fail. Choose the correct meaning of the underlined words in the following sentences from the box
given below. Frame sentences of your own for these words. Now here some sentences are given to us. Here these are the meanings, okay, and we have to find out the correct word for it. For example, यहाँ लिखा है please make every endeavor to arrive on time and toil tirelessly to save food for rainy season. We encourage all students to strive to do their best. The sailors brace themselves against the strong wind. ठीक है, तो वर्ड्स क्या है हमारे पास? एंडेव्योर, टॉयल, स्ट्राइव, ब्रेस्ड. ठीक है, और यहाँ हमें 4 ही मीनिंग दे रखे हैं और नीचे 4 वर्ड्स दिए हैं, तो हमें करेक्ट बताना है इसमें से कि कौन सा वर्ड जो है वो किस मीनिंग के साथ जाएगा. फर्स्ट मीनिंग है वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसके लिए यहाँ करेक्ट वर्ड होगा स्ट्राइव. नेक्स्ट मीनिंग प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, इट इज कॉल्ड टॉयल. एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, इट इज कॉल्ड ब्रेस्ड. एंड लास्ट टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग एंडेव्योर. अब करेक्ट वर्ड वी हैव रिटन, मीनिंग दिया हुआ था, मीनिंग के आगे हमने करेक्ट वर्ड लिख दिया. नाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम आउट दी सेंटेंसेस. स्ट्राइव, वी मस्ट स्ट्राइव टू सिक्योर स्टेडी ग्रोथ. मीनिंग क्या है इसका? वर्क वेरी हार्ड फॉर लॉन्ग टाइम, तो हमें जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए स्टेडी ग्रोथ के लिए, जो है हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए. Then toil. If you want knowledge, you must toil for it. Okay? You have to prepare yourself for something difficult. तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको अपने आप को जो है उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा. She braced herself to lead a normal life. Braced, attempt to do something new, कुछ नया करना या डिफिकल्ट करना. उसने अपने आप को प्रिपेयर किया ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सके. देन लास्ट, वी मस्ट कॉन्स्टेंटली एंडेवियर वी इफ वी आर टू सक्सीड. अगर हमें सक्सीड करना है, सक्सेस चाहिए, तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए. राइट? सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू मेक आउट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. The poem uses words that show distance. For example, a long way up, inch by inch, higher and higher, half yard high. So हमारी जो पोम है इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ करे गए हैं डिस्टेंस शो करने के लिए. कहाँ का डिस्टेंस? जो सीलिंग से लेकर जो स्पाइडर था वो एक सिल्कन क्लू से जो है अटैच था, उसका जो डिस्टेंस है उसके लिए कुछ वर्ड्स पोएट ने यूज़ करे हैं डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के. ठीक है, classify the words or phrases in the box given below based on distance far or near and write in the space provided. तो हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर और ये वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये हमें फार डिस्टेंस बता रहे हैं या नियर डिस्टेंस बता रहे हैं. एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. ओके, सो लेट अस रीड आउट द वर्ड्स. प्रॉक्सिमिटी, middle of nowhere, vicinity, adjacent, remoteness, yonder, afar, a stone's throw, light year, hairline, further. ओके, तो फार में हमें जो वर्ड्स हमें फार डिस्टेंस बता रहे हैं उनको लिखना है और नियर में हमें जो वर्ड्स नियर का डिस्टेंस बता रहे हैं हमें उनको लिखना. ठीक है, चलिए ढूंढते हैं फार में क्या क्या कौन से वर्ड्स हैं. फर्स्ट है मिडल ऑफ नोवेयर. नेक्स्ट रिमोटनेस, यॉन्डर, अफार, लाइट ईयर, फर्दर. ये सारे वर्ड्स हमें फार डिस्टेंस बता रहे हैं. देन वी विल राइट फॉर नियर.
proximity, vicinity, adjacent, a stone's throw, hairline. So with this we have completed all the exercises which are given at the back of this poem. I hope you have understood all the question answers and the given exercises. Now I'll meet you in my next video. Up till then, take good care of yourself. Goodbye.